Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of ophthalmology, and here is the applied anatomy of the eye. So talking about the anatomy, before we actually go into the disease processes, you need to have the better understanding of the structures of the eye. Gross anatomy. As you know, beta, there are the structures of the eye include the orbital cavity that actually protects the eyeball. ये bony orbital cavity होती है. इस bony orbital cavity के अंदर आई बॉल मौजूद होता है और ये bony orbital cavity आपके इस आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है. और या तो आई के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. एक तो ये bony orbital cavity, ठीक है, ये आई बॉल, ठीक है जी, और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो कि आके अटैच होते हैं और इस आई बॉल को डिफरेंट डायरेक्शंस में गैस में मूव करवाते हैं. ठीक है. और इसके अलावा बहुत सारा फेशिया और फैट जो कि सपोर्ट देता है आपके आई बॉल को. चार चीज़ें हो गई बेटा. ये एक बोनी ऑर्बिट हो गया, दिस आई बॉल इटसेल्फ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर muscles right there, and with this is the fascia and the fat. It's interesting. Well, we actually have to talk about this thing, the eyeball, right? Take this eyeball out of the socket, just study this eyeball, and this eyeball beta has got 3 layers. I have to take this eyeball out and have to draw here, right, to keep both the things, the text part and the diagram part together. So you see there are the 3 layers of the eyeball. One is the fibrous layer, one is the vascular layer, one is the nervous layer, right? Let me describe you what I'm trying to say. I'll show you the picture from this book, but for now just try to get everything from here. Okay, so this is outermost layer, right? As said to be the fibrous layer, right? And just below this black layer comes another layer, and that is the vascular layer, having lots of blood vessels and this nice tiny thing here, and then one more thing here. Okay, it's looking good. So yeah, and one more layer deep inside this, and it's a neural layer. It's a neural layer, right? I hope you like this. The outermost layer, इसको हम कहते क्या हैं बेटा, फाइब्रस लेयर कहते हैं या फिर कार्नियो सक्लरल लेयर कहते हैं. ठीक है. सो इट हैज़ गॉट 2 कंपोनेंट्स, राइट फ्रॉम हेयर टिल देयर इट्स योर कार्निया, राइट, एंड दिस इज द स्क्लेरा. ठीक है जी. कॉर्निया द आउटर मोस्ट पार्ट, स्क्लेरा भी आपको दिख जाता है बाहर आंखों में. एंड या दिस इज द कार्नियो स्क्लेरल और द फाइब्रस लेयर, क्योंकि इसमें कार्निया और स्क्लेरा दोनों चीज़ें आ जाती हैं. The cornea is transparent, that is you can see across it. It makes up anterior 1/6 of the outer layer. This makes up the 1/6. This is only 1/6, obviously छोटा सा है, और बाकी ये जो सारा है it makes up the 5/6, right? Okay, easy. And the cornea is a transparent. It makes up anterior 1/6. Sclera, it makes up the outer 5/6, the posterior 5/6. And sclera is very much tough, very dense layer made up of collagen. And in between the cornea and the sclera comes a transitional zone where both are connected, the cornea and sclera. And in between these two is the transitional zone, and is said to be the limbus, 2 millimeter wide. It's a transitional zone, and it contains the trabecular meshwork. If you take this area out, and you will see inside this area there is the trabecular meshwork, और इसी के थ्रू जो है यहाँ से एक्वस ह्यूमर आता है और यहाँ से एक्वस ह्यूमर ड्रेन आउट हो जाता है. एनी प्रॉब्लम? क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेयर. दिस इज द वैस्कुलर लेयर, यूवियल लेयर भी कहते हैं इसको. ठीक है जी. सो इट हैज़ गॉट 3 components. I think it's better now. So if you can see both the things simultaneously, right, beta. The second layer is the vascular layer. It has got 3 components. One is this, right from here till here.
This is the choroid, and this nice little body is the choroid body, and this projecting structure is called the iris, right? This is iris. Okay, the choroid, right from here till there, it's very much vascular and provides nutrition to the outer layers of the retina. It gives nutrition to the outer layers of the retina. Okay, nice. And then comes this ciliary body, and ciliary body, this is the ciliary body which actually produces the aqueous humor, which I was talking about in the embryology. This is the ciliary body which produces the aqueous humor, the tertiary aqueous humor. And not only the production of aqueous humor, but the ciliary body also takes part in the accommodation through the muscular muscular मसल्स को कुछ इस तरीके से कभी टेंस करके, कभी उनको रिलैक्स करके जो अकोमोडेशन है उसमें भी मदद करती है. नाउ व्हाट इज दिस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स? आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन डिटेल लेटर वीडियोस के अंदर. बट फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड देयर इज समथिंग कॉल्ड सिलियरी बॉडी हैज टू प्रोड्यूस एक्वस ह्यूमर. नाइस. व्हाट एल्स इट हैज टू डू? व्हाट एल्स इट हैज टू डू? अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में पार्टिसिपेट करती है, मसल्स को टेंस करके उनको रिलैक्स करके. ठीक है जी, गुड. देन कम्स दिस नाइस लिटिल बेबी कमिंग आउट ऑफ दिस, एंड दिस इज द आइरिस. इट एक्ट्स मोर लाइक अ डायफ्राम. And if I draw this on both the sides, just for understanding purpose, this is iris of another side, this is the ciliary body, the nice little body. I really like it very much, and this is the choroid coming out of it. So this is more like a diaphragm, and in between the space is called what? Pupil. This is the space we call pupil. So iris is a diaphragm with a central aperture called the pupil, and this is the pupil which actually controls the amount of light which has to enter across this and enter into the retina. So pupil कभी नैरो हो जाता है, कभी डायलेट हो जाता है, नैरो हो जाता है, डायलेट हो जाता है. तो इस तरीके से वो मैनेज करता है कि किस तरीके से कितनी लाइट को अंदर भेजना है और कितनी को नहीं भेजना. Yeah, so after we are done with these two layers, beta, the fibrous layer, what do we call this? Vascular layer, and then comes the nervous layer, retina. Light enters here. The light energy actually comes into this retina, is converted into the electrical impulses, and the electrical impulses are carried through the optic nerve all the ways up into the brain, right? So the retina is of also, it has got two components. This is the outer layer. This is said to be the retinal pigment epithelium, the outermost. The innermost is the sensory retina. It's easy, very much easy. The inner one, sensory retina. The outermost is the epithelium. Here we have this retinal pigment epithelium. I hope you are clear with this, beta. So now from now onwards, I'll be telling you about the anterior segment and the posterior segment. So for that, I have to draw it again. This is the cornea for your revision purpose. This is the nice looking sclera on this side, the sclera on this side, and we got in between these two is the limbus, right? We actually have to we don't have to draw this right now. We got this structure, what do we call it? Choroid. Okay, this is a structure, what do we call it? Ciliary body. This is the iris. And this side, the same thing. This is the choroid, this is the ciliary body, this is the iris, right? In between is the aperture called pupil. Okay, and if I'm not wrong, this has to be the lens right here. Okay, so the anterior segment is from here till here, right? And the anterior segment is further divided by the iris into two chambers. Look, the anterior segment is from here till here, and you can see iris is actually further dividing this anterior segment into these two structures. The space above the iris and the space below the iris, right? So the anterior segment, the portion of the anterior segment above the iris is the anterior chamber, and the space of the anterior segment posterior to the iris, this is called the posterior chamber. So right from here till here is the anterior chamber of the anterior segment, and from here till here is the posterior chamber of the posterior segment. The anterior chamber bounded anteriorly by the cornea. किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे anterior chamber के cornea है, ठीक है. Posteriorly by the front surface of the iris and the lens. Posteriorly
क्या है, एंटीरियर चेंबर के पोस्टीरियरली आइरिस है या फिर ये फ्रंट सरफेस ऑफ लेंस है. ओके, एंड व्हाट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ द एंटीरियर चेंबर. या peripherally there is the anterior chamber angle, this angle, right, this angle. So if talking about the boundaries of the anterior chamber, more anteriorly you have got cornea, posteriorly you can see this is the iris, or you can say the front surface of the lens, and in the periphery you have got this baby, the angle, right, angle, the anterior chamber angle. Good. Then comes the space from here right till there is the posterior chamber, right. Before I really go into this posterior chamber, just let me tell you a few more things about the anterior chamber. Anterior chamber की depth जो होती है 2 to 3 millimeter होती है. I don't think you have to keep it in your mind, but still you can just read it. Volume is to 0.25 ml, right. इसके अंदर aqueous humor होता है. ये जो space है ना, कितने ml है, 0.25 ml, and has got aqueous humor. It provides nutrition to the vascular structures. इसके अंदर aqueous humor मौजूद होता है anterior chamber में, ठीक है. और ये न्यूट्रिशन देता है लेंस को, न्यूट्रिशन देता है ट्रेबिकुलर मेशवर्क को, न्यूट्रिशन देता है आगे कॉर्निया को, ठीक है, इस तरीके से. और ये जो इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, यहाँ से लाइट जो है पास होके पीछे जा सकती है. व्हाट अबाउट द पोस्टीरियर चेंबर रनिंग राइट फ्रॉम हेयर एंड टिल देयर. इसकी अगर बाउंड्रीज देखें तो एंटीरियरली क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो एंटीरियरली क्या है, आइरिस है, ठीक है, राइट बेटा. सब पोस्टीरियरली एंटीरियरली आई हैव दिस आइरिस, and posteriorly I have the anterior surface of the lens, right, posteriorly by the anterior surface of the lens. So this space you can see, this is the posterior chamber जिसमें anteriorly iris है, posteriorly क्या है, this front surface of the lens. Boundaries are clear. Anteriorly iris, posteriorly the front surface of the lens, and the zonules, right. What are the zonules here? Zonules are the fibers right here, right. These are the zonular fibers, right. So talking about the boundaries of the posterior chamber, anteriorly the iris, posteriorly the front surface of the lens, and posteriorly also these, you know, what do we call it, ciliary, yeah, and these are the zonules, right, in the posterior end. And in the periphery there are the ciliary processes coming out of the ciliary body, right. And what about this posterior chamber, it has you know, मतलब कंपैरेटिवली बहुत कम वॉल्यूम होता है इसका, 0.06 ml, ठीक है, एक्वस ह्यूमर होता है इसके अंदर. एंटीरियर चैम्बर में 0.25 ml होता है. सो आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू यू बेटा अबाउट द एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर. उसके बाद कम्स दिस स्पेस राइट एट द बैक ऑफ द लेंस. दिस इज सेड टू बी द पोस्टीरियर सेगमेंट, राइट. और इसको विट्रस कैविटी भी कहते हैं. इसके अंदर क्या मौजूद होता है, विट्रस ह्यूमर मौजूद होता है, ठीक है. So it is bounded anteriorly by the lens and the zonules, bounded anteriorly by the lens and the zonules, and the ciliary processes from the ciliary body, and the posteriorly इसके क्या मौजूद है, रेटाइना मौजूद है, ठीक है, और यहाँ से निकलने वाली ऑप्टिक नर्व मौजूद है. So this is the vitreous cavity, this is the posterior segment. Anteriorly it has the back surface of the lens, the zonules, and the ciliary fibers coming out of the ciliary body. Posteriorly you have got this retina and the optic nerve coming out of this. Easy. What about the volume? What about the volume of this space? The volume of this space is 4.5 ml. इसके अंदर vitreous humor होता है. Vitreous humor is a transparent fluid. It is jelly-like structure जिसके अंदर 99% वाटर होता है और 1% सॉलिड्स होते हैं. यह भी एक्वस ह्यूमर की तरह ट्रांसपेरेंट होता है. इसमें से भी लाइट रेज पास हो सकती हैं और यहाँ रेटिना पे फोकस हो सकती हैं, ठीक है बच्चों. इसकी एनाटमी क्लियर है, राइट. अब ज़रा इस पिक्चर से समझने की कोशिश करें सेम चीज़ वेरी क्विकली एक रिवीजन के लिए. यू कैन सी दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा एंड द स्क्लेरा नैरोज डाउन. This is the cornea in the front, and at the junction of the sclera and the cornea, this is the limbus जहाँ पे aqueous humor drain होता है. उसके बाद with this red color is the choroid, and this choroid continues here into the ciliary body, and this we have this beautiful thing iris, right. And the innermost thing with this yellow color is the retina. इसकी 2 layers के बारे में मैंने बता दिया. And here you can see that right from here till there is the anterior segment,
और इस आयरिस ने इंटीरियर सेगमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये एंटीरियर चेंबर, ये पोस्टीरियर चेंबर। इसकी बाउंड्रीज मैंने बता दी। एंड राइट फ्रॉम हेयर टिल हेयर इज द posterior segment, it's a posterior segment. Clear? Okay जी. So talking about the crystalline lens, this lens it is a biconvex grassly transparent structure. ये भी transparent होता है और biconvex होता है, ऊपर से भी convex नीचे से भी convex. Well, it takes part in the refraction of the light rays and accommodation. ठीक है. It actually refracts the rays of the light coming and it just focuses on the retina, right? और accommodation में भी इसका रोल होता है. What about the role of the extraocular muscles? The extraocular muscles are really important. They help the eyeball to move in the different directions, and there are 6 in number. Extraocular muscles, 4 are the rectus muscles and 2 are the oblique muscles, right? इसके अलावा फेट और फेशिया का भी बड़ा रोल होता है आई बॉल को सपोर्ट करने में. इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू द आई बॉल एंड सस्पेंड्स द आई बॉल इन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट. अगर ये ऑर्बिटल कैविटी है, बोनी कैविटी, तो इसके अंदर आई बॉल को सेंटर में पकड़ के रखना. ये फैट और ये जो कुशनिंग होती है ना फैट की, फेशिया की, तो उसकी मदद से आई बॉल बीच में पड़ा रहता है. व्हाट अबाउट द आईलिड्स? We'll talk about the anatomy, the structure of the eyelids in detail in the upcoming lecture on eyelids. But generally you can remember that the eyelid के अंदर कौन से components होते हैं. They've got the tarsal plates, इसके अंदर Muller's muscle होता है, LPS होता है, levator palpebrae superioris muscle, और दूसरे glands होते हैं, meibomian glands, glands of Zeiss, gland of Moll. I'll describe the everything regarding the eyelids in the next lecture. So, what's the purpose of this eyelid? eyelid ऊपर आंखों के होती है ऑब्वियसली, और तो प्रोटेक्शन देती है. बाहर से अगर कोई इंजरी आए तो आपकी जो आईलिड्स होती हैं फ़ौरन से प्रोटेक्ट कर लेती हैं. एंड एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन आईलिड्स का वो ये है कि आईलिड्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्वस और लिपिड लेयर प्रोड्यूस करते हैं टीयर फिल्म के अंदर. अब जब तक ये चीज़ आप नहीं समझेंगे आपको बात समझ नहीं आएगी. देखो ये दिस इज़ द स्क्लेरा, दिस इज़ द कॉर्निया. कॉर्निया के आगे विद दिस ब्लू इज़ व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर वी कॉल कंजक्टाइवा. ठीक है जी, ऐसे ही होता है. और ये ऊपर एक आईलिड, दिस इज़ द लोअर आईलिड. कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ये जो कंजक्टाइवा है ना बेटा, इसके जस्ट बाहर, ये इतनी बड़ी तो ऑब्वियसली नहीं, बड़ी पतली सी लेयर होती है टीयर फिल्म की. ठीक है, टीयर फिल्म होती है पतली सी. उस टीयर फिल्म की 3 लेयर्स होती हैं. सबसे जो अंदर वाली होती है उसके अंदर होता है म्यूकस. ठीक है, और जो बीच वाली लेयर होती है उसके अंदर होता है वाटर, और उससे बाहर वाली जो लेयर होती है उसके अंदर होता है ऑयल, लिपिड होते हैं. ठीक है, ये टीयर फिल्म कंजक्टाइवा के आगे मौजूद होती है. अच्छा, ये जो टीयर फिल्म है इसके अंदर जो वाटर कंपोनेंट है और जो लिपिड कंपोनेंट है वो कहाँ से आता है, आई लिड के ग्लैंड से आता है. ठीक है, आई लिड के ग्लैंड से आता है. अच्छा, जो इसके अंदर जो म्यूकस और वाटर कंपोनेंट है ना, ये कहाँ से आता है, इस कंजक्टाइवा से आता है. यानी कि ये टीयर फिल्म बनाने में कंजक्टाइवा भी कंट्रीब्यूट करती है, आईलिड भी कंट्रीब्यूट करती है. आईलिड क्या देती है, इसके ग्लैंड्स क्या देते हैं, फैट और वाटर. इसके ग्लैंड्स क्या देते हैं, वाटर और म्यूकस. ठीक है जी, अब इधर आ जाओ आप. या eyelids, the glands of the eyelids produce the aqueous and the lipid component of the tear film. Easy. What about conjunctiva? Conjunctiva की जो secretions होती हैं, they contribute the mucus and the aqueous layer, the watery layer of the tumor, watery layer of the tear film, right? So conjunctiva के बारे में अगर बात करें तो conjunctiva itself क्या है, it's a very thin translucent membrane. It joins the eyeball with the eyelids. इसके अंदर goblet cells होते हैं, lacrimal glands होते हैं. So conjunctiva is really important. superior जो pharynx होता है उसके अंदर लैक्रिमल ग्लैंड मौजूद होता है, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं. तो अगर मैं वापस आपको इसी पिक्चर पे ले जाऊं तो आप एक चीज़ नोटिस करें कि जो कंजक्टाइवा है बेटा, ये ऊपर आईलिड के साथ कनेक्टेड होती है. सही है, इस तरीके से. सो या कंजक्टाइवा इज कनेक्टेड अबव विद द आईलिड्स. और कंजक्टाइवा आपके कॉर्निया को ऑब्वियसली बात है सपोर्ट भी कर रही है, और दूसरा ये है कि कंजक्टाइवा टीयर फिल्म बनाने में भी मदद कर रही है. सो इट्स गुड टू नो दैट कंजक्टाइवा has got so many glands, goblet cells, lacrimal glands. इनकी secretions contribute करती हैं टीयर फिल्म बनाने में. ठीक है बच्चों, what is this tear film? It is actually the 3 layered फिल्म जिसमें सुपरफिशियल लिपिड होता है, फिर एक्वस लेयर होती है, फिर इनर म्यूसिन लेयर होती है. इट कवर्स द इरेगुलर कॉर्नियल सरफेस
into the it actually converts the irregular corneal surface into the smooth optical surface and prevents the drying up of the corneal surface। ये बड़ी ज़बरदस्त टीयर फिल्म होती है। कॉर्निया की कंजक्टिवा की बड़ी इरेगुलर सरफेस होती है, इसके आने से सरफेस बड़ी स्मूथ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जब कॉर्निया बार बार ड्राई हो जाता है तो इसकी मदद से वो ये एक्चुअली वाटरी है तो इसको ड्राई नहीं होने देती, ठीक है जी। इस तरीके से द लास्ट थिंग कम्स एंड इट इज़ द लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम बड़ा समझना आसान है बेटा। आप यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है बेटा, प्रेजेंट राइट अबव हेयर, कहाँ मौजूद है देखो, इन द लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। और जो एक्सेसरी लैक्रिमल, मैं जो पीछे बात कर रहा था वो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स है, ठीक है। द एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सुपीरियर फॉर्निक्स ऑफ द कंजक्टिवा। समझ आई बात। एक तो ये मेजर आपका लैक्रिमल ग्लैंड हो गया, ठीक है। जहाँ कहाँ मौजूद है, लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट में। द लैक्रिमल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। और जो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो आपको कंजक्टिवा में मिलेंगे, सही है। अच्छा जी, सो ओके, व्हाट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम? इट स्टार्ट विद द सुपीरियर लैक्रिमल पंक्टम, इन्फीरियर लैक्रिमल पंक्टम, ठीक है जी। इसके बाद आता है सुपीरियर कैनालिक्यूलस, इन्फीरियर कैनालिक्यूलस, देन द कॉमन कैनालिक्यूलस, दिस इज द लैक्रिमल सेक, हेयर इज द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, एंड ये कहाँ ओपन होती है, इन्फीरियर मिएटस के अंदर, और नोज के अंदर ये ड्रेन कर देती है टीयर फिल्म को, ठीक है बच्चों। अब लास्टली ज़रा बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की और विजुअल पाथवे की। तो आपको पता है बेटा, जब ऑप्टिक नर्व निकलती है तो दिस इज़ द राइट, अब मैंने ड्रॉ कर लिया बिल करके, इफ़ दिस इज़ द राइट आई, दिस इज़ द लेफ्ट आई, इसके जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं, इसके नेज़ल फाइबर्स कंट्रालेटरल डायरेक्शन में जाते हैं और जहाँ पे ये क्रॉस करते हैं, डिकसेट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक चियास्मा। और ये टेम्पोरल फाइबर्स अपनी साइड पे रहते हैं, ये टेम्पोरल फाइबर अपनी साइड पे रहते हैं। तो फिर आगे चल के ये ऑप्टिक ट्रैक बनता है। ऑप्टिक ट्रैक के अंदर एप्सिलेटरल साइड का टेम्पोरल फाइबर होता है, कंट्रालेटरल साइड का नेज़ल फाइबर होता है, एंड दे एंड अप इन दिस बॉडी कॉल्ड द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से ये ऑप्टिक रेडिएशन निकलती है और ये ऑप्टिक रेडिएशन जाके कहाँ जाती है, या ये आपका कौन सा कॉर्टेक्स है बेटा, दिस इज़ द या हियर इट इज़ विजुअल ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स विच इज़ लोकेटेड ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब में मीडियली ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स मौजूद होता है, अबव एंड बिलो द कलकरिन सल्कस। इफ़ यू रिमेंबर कि ये जो ऑप्टिक रेडिएशन है ये कहाँ एंड होती है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ठीक है, और उसके भी मीडियल पार्ट में, राइट बेटा। क्लियर विद दिस पाथवे। नाउ कम्स द पिपुलरी रिफ्लेक्स पाथवे। आपकी एक पिपुलरी रिफ्लेक्स होता है, जब आपकी आंखों में कोई टॉर्च मारता है, जब लाइट आती है तो फ़ौरन क्या होता है, आपका पिपल जो है वो पिपल का डायमीटर छोटा सा हो जाता है, पिपल बंद हो जाता है, ठीक है। तो पिपलरी रिफ्लेक्स इज एक्चुअली द रिफ्लेक्स टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द पीपल एंड रिस्पॉन्स टू द लाइट इंटेंसिटी टू एडजस्ट द एंट्री ऑफ द लाइट क्वांटिटी। देखें क्या होता है कि इफ़ लेट्स सपोज दिस इज़ द पीपल, सही है, तो कभी ये पीपल डायलेट हो जाता है, कभी ये पीपल छोटा सा हो जाता है। तो क्योंकि इस पीपल के अंदर बड़े होने और छोटे होने की सलाहियत है, तो ये डिटरमाइन करता है कि अंदर आँख के कितनी लाइट जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए। सो दिस इज़ द पिपुलरी रिफ्लेक्स। इसका एक पाथवे होता है जिसकी मदद से ये डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होता है। इसका पाथवे ये होता है बेटा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं ना, लेकिन जो पिपुलरी रिफ्लेक्स पाथवे है उसमें क्या होता है कि यहाँ से कुछ फाइबर निकलते, वैसे तो सारे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं, लेकिन कुछ फाइबर यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकलने के बाद वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में तो जाते ही जाते हैं, लेकिन कुछ फाइबर जो यहाँ से निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस के अंदर, जो कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व का, सही है। और फिर फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस दे ट्रेवल इन द ऑक्यूलोमोटर नर्व और फिर जाके सीलियरी गैंग्लियन पे टर्मिनेट करते हैं। क्या कहा मैंने, वैसे तो सारे फाइबर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में। और फिर एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से निकल के, दिस इज द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, फिर यहाँ से जो फाइबर निकलते हैं वो किस में रन करते हैं, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व के अंदर रन करते हैं, सही है। और फिर ये जाके कहाँ पे साइनेप्स करती है, सीलियरी गैंग्लियन में साइनेप्स करती है, ठीक है। और फिर सीलियरी गैंग्लियन से जो पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर्स निकलते हैं ना, या द पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर फ्रॉम द सीलियरी गैंग्लियन द ट्रेवल वाया द शॉर्ट सीलियरी नर्व। अच्छा, अब ये सीलियरी गैंग्लियन है, इससे जो फाइबर्स निकले वो किस में रन करते हैं,
शॉर्ट सीलियरी नर्व के अंदर रन करते हैं और जाके सप्लाई करते हैं पीपल का जो मसल होता है, स्फिंक्टर पीपली मसल को। और फिर ये मसल कंट्रैक्ट होता है, जब इसको पीपल को कंस्ट्रिक्ट करना होता है तो ये मसल जो है कंट्रैक्ट करता है, और जब पीपल को डायलेट करना होता है तो ये मसल जो है रिलैक्स होता है। ठीक है बच्चों, सिंपल। ओके, so this is the pupillary reflex pathway. Lastly, couple of things in this chapter. नर्व सप्लाई आई बॉल की, और सेंसरी सप्लाई भी आ गई, मोटर और सेंसरी दोनों, और ब्लड सप्लाई। मोटर सप्लाई की बात करें तो आकुलो मोटर नर्व जो होती है बेटा, इट सप्लाइज ऑल द एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स एक्सेप्ट द सुपीरियर ऑब्लिक एंड द लेटरल रेक्टस मसल। तो सुपीरियर ऑब्लिक और लेटरल रेक्टस को कोई और सप्लाई करता है। आकुलो मोटर सारे एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट दीज टू। इसके अलावा आकुलो मोटर सप्लाई करती है एलपीएस को, लेवेटर पल्पेब्री सुपीरियरिस को, स्मूथ मसल्स जो कि अकोमोडेशन में काम आते हैं जैसे कि स्फिंक्टर पीपली, और इसके अलावा सीलियरी मसल्स। ठीक है, आकुलो मोटर का सप्लाई क्लियर। जो सुपीरियर ऑब्लिक था उसको ट्रोक्लियर सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व नंबर 4, और जो लेटरल रेक्टस मसल होता है उसको एब्डुसेंट सप्लाई करती है, नर्व 6। ये तो मोटर सप्लाई हो गया। सेंसेशन कौन लेके जाता है आई बॉल से? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। 3 कंपोनेंट होते हैं, ऑप्थेल्मिक, ट्राइजेमिनल, ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी। तो जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है ट्राइजेमिनल का, वो आंखों को सेंसरी सप्लाई देता है, सही है। और व्हाट अबाउट द ब्लड सप्लाई? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रॉस एनाटमी of the eye. ठीक है बच्चों, if you have any question you can ask me anytime, anywhere. Thank you so much. Class dismissed.